A very pleasant morning to all of my dear colleagues. And today, before starting off this in-house webinar, I would like to extend thanks to my management that he has considered me to conduct this webinar, and again as a pioneer coordinator to conduct the webinar of in-house training in the session 2022 and 23. I feel fortunate that I am the first to begin this seminar. And as you know that it is mentioned here, importance of gratitude. My topic is importance of gratitude. I would like to start this one with a very small activity. And I want all of you to please involve yourself, because I try my level best to keep my session active. Here, I am going to show you a paper. And after observing this piece of paper, I will ask a question to you. Please observe this question, piece of paper. Sir, paper वाली जगह, मैम आपको paper वाली जगह. Please observe this piece of paper very closely. आपने देख लिया इस पेपर को, आप सभी ने? हमारे प्यारे colleagues. Now, what do you observe from this piece of paper? आपने क्या देखा इसमें, बताइए, क्या महसूस किया? One black dot. 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 Paper is plain, sir. Large plain area. Large plain area. Large white area. Okay. Your all answers are welcome here, and I'm very happy that you are very active and involved. That you have observed that one black dot, and some of my friends have observed that a large plain area. This is a very common incident in our life, because always we are focused on that black dot, that troubles, that worries, that tensions in our life. We are not thinking of the benefits that given by the God, given by your family, given by your society, given in and around from our vicinity or our neighbors. So here I am going to introduce my topic, that importance of gratitude with a story. The very first I would like to that we have to make it clear that there are so many good values in gratitude. So what values are which are inside of the attitude and which are not considered in the gratitude, that will become clear with this story. So let us start this powerful story. Mr. Tony was visited an isolated. Tony Prince visited an isolated island in Fiji, and he was welcomed in that isolated island by English spoken people. And in that Kabila there was 100 people in that one, and he was the only member in that Kabila who could talk in English. That person welcomed him and took him into that one hut of that Kabila. He was welcomed there. And let me talk about one or two sentences about Mr. Tony Prince. He was well-known life instructor, and he has given his workshop and seminars to many successful people of the world, to business tycoon, and he has spent time with them. And now today he was in that isolated island with the inhabitant people, with the Kabila's people. Gradually all the 100 people of that Kabila gathered in that hut. He was felicitated there and he was given tea. And he has mentioned that they were not, their condition was not much affluent. Very simple condition, and he had to drink that tea in a hollow coconut shell. उनके पास कप भी नहीं था और उन्होंने चाय किसमें पिया? एक नारियल के कोले में पिया. And he spent almost 1.5 hours quality time with those Kabila's people. And I mentioned that Mr. Tony was a world-famed life instructor, and he has his experience of giving workshop and seminar to business tycoon, to the successful people of the world in many fields, in the field of business, in the field of politics, in the field of games, those who are well known. And when he observed the condition of those Kabila's people, and he observed that the zeal, the happiness, the love,
the enthusiasm, and he compared these things with the people, successful people, billionaire people, successful people. He found that the joy, the love, the happiness, जो प्रेम, जो उत्साह उन लोगों में था, वो प्रेम उत्साह उन सक्सेसफुल पीपल के अपेक्षा उनका जो कबीले वाले लोग थे उन पर भारी पड़ रहा था। और उन्होंने देखा कि उनकी माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। After spending 1.5 hours, when he was returning, then he asked this question. He was bothering about that the people have all the facilities, cars, building, everything, but then he didn't feel that much love, and love in those people. क्या कारण है? What is the secret of that one? He asked these questions to the person, English spoken people, who was the only member in that kabila who talk in English. तब उस व्यक्ति ने कहा, सर, I know that I am the only person who talk in English, but I never trained my people to learn this language and in other language. Then Mr. Tony worried, why? Then that person told that in the language of our Kabila there is no such word like hatred, tensions, worries, sorry. हमारे कबीलाई लैंग्वेज की भाषा में द्वेष, घृणा, नफरत इस तरह का कोई शब्द ही नहीं है। तो हमारे कबीले के लोग जब किसी दिन कुछ दुख का एहसास होता है, when they feel sad or sorrow, तो वो अपनी बात को दूसरे तरीके से रखते हैं। वो कहते हैं कि आज मुझे कम खुशी का एहसास हुआ है, आज मुझे कम खुशी का एहसास हुआ है, मुझे I feel less happy. My dear friends, this is the magic of language. This is the magic of our नजरिया। ये जादू है हमारे नजरिया का, ये मैजिक है हमारी भाषा का। And this is called gratitude. So when the scholars of world, they have one opinion that gratitude transforms our negative pattern into positive way, negative pattern into positive way. Let me make it very crystal clear that in gratitude, positive thinking is not gratitude. सबसे पहले आपको याद रखना है पॉजिटिव थिंकिंग ग्रैटिट्यूड नहीं है। मेंटल प्रैक्टिस और मेडिटेशन इज आल्सो नॉट ग्रैटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो नॉट ग्रैटिट्यूड। देन यू विल आस्क व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड हैज टू पार्ट्स, दो भाग उसके होते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रैटिट्यूड इज दैट व्हाट वी हैव इन आवर लाइफ and in our world is very good, is very splendid, is very magnificent. आज हमारे जो जीवन में है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। And the second part of the gratitude is that what we have achieved, what we have getting without our demand, बिना मांगे जो हमारे जीवन में ये अच्छा चीज और सुंदर चीज है, जो हमारे पास शुद्ध हवा है, मम्मी है, पापा है, जो भी चीजें जिस रूप में हम सोच सकते हैं, वो हमारे जीवन को और अधिक सुलभ और अधिक सुंदर और अधिक खूबसूरत और अधिक हसीन बना रहा है। इन्हीं दोनों चीजों का जब हमें एहसास होता है, जब हम इसको महसूस करते हैं, वही है हमारा ग्रैटिट्यूड, वही है हमारी कृतज्ञता। अब इसका दूसरा भाग आता है कि ग्रैटिट्यूड, ये ग्रैटिट्यूड कैसे फंक्शन करता है, क्या है? इसको भी मैं एक एक्टिविटी से, एक सच्ची घटना से बताऊंगा। Once a shoemaking company of England wanted to extend their business in other part of the world, so they sent two of its manager in different Africa to find out is there any opportunity to extend their business of shoe in Africa. So the two chosen manager went to Africa and did their survey in two different parts of the continent. They did that survey for almost one week. After 1 week, they observed what they have found and what their findings. They sent the report. Manager 1 gave a call to the company, and he reported that there is no scope of business in the Africa. Why? Because no people in Africa are wearing shoes. अफ्रीका में कोई व्यक्ति जूते नहीं पहनते हैं, इसलिए यहाँ जूता की कंपनी का विस्तार का कोई चांस ही नहीं है। Contradictorily,
the other manager, just after one day, reported to the company, here there is abundant opportunity, large scope for the extension of our business. Why? There is no person in this continent who was wearing shoe. अफ्रीका में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जूते पहनता है. My dear friends, my dear colleagues, our mind is a powerhouse, and continuously on an average, our mind talks 1,000 to 1,300 words per minute. Then the quality of conversation that our mind talks to ourselves, it leads to our personality. हमारा मन हमसे जो बातें करता है और उसकी जो क्वालिटी होती है, उसी के अनुसार हमारा डेवलपमेंट होता है, उसी कारण हमारा पर्सनालिटी बनता है. Here in this example, there is similar condition for manager one. His mind give a self negative talk to his mind, and he considered and he observed and he developed the perception that it is a difficulty, it is a problem there. In Africa, it is a problem for the scope of business. So because of the self-negative talk, he observed and he considered and he finalized this condition as a problem, as a difficulty. Yes or no? Now the second manager, his mind talk self-positive talk to his mind, and he considered, he observed that scenario, that situation as a opportunity, as a benefit. So here we can observe that because of the quality talk that our mind is talking to ourselves, we develop our perception, we generate our decision, that we become the part of our life. उसी के अनुसार हम अपने जीवन को हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, उसी के अनुसार हम निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, और उसी कारण हम नकारात्मक या सकारात्मक की तरफ बढ़ जाते हैं. अब जब मैं ये बातें कर रहा हूँ, so some of my friends might have thinking, is there any way so that we can channelize our thoughts, change our thoughts from difficulty to opportunity, from problem to benefit? जी हाँ जनाब, इसके दो रास्ते हैं. आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ला दें? इसके दो तरीके हैं. मेथड नंबर 1, that all the time we have to become very alert and cautious. Sir, because always we do mistakes, omission mistake or commission mistake. तो जब भी कोई ऐसी समस्या आती है तो we started thinking in a negative direction. So the method 1 says that all the time we have to keep ourselves very much alert, and whenever the negative thought generates in our mind, we have to change that from negative to positive. ये सुनने में जितना कठिन है my dear colleagues, friends, उसको जीवन में अपनाना उससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा कठिन है. क्यों? Why? Because we have developed and adopted these things through years. हमने उसको सालों से अपने जीवन में उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है. So it is very difficult to change ourselves from that condition, to change our set of mind all the time. तो ये बहुत ही मुश्किल है. ये सब लोग आप मेरी बात से सहमत हैं? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, होते हैं कि घड़ा जितना पक्का हो जाता है उसको भूल करना होना ही मुश्किल होता है. I mentioned that there are 2 methods. So method 1 is almost cancel. Method 1 is almost cancel, because transformation of our thought process is very difficult. For a child it is easy, but for a grown-up person it is very difficult. So what is the second method? Second method is a short trick. आसान है वो, and that is the second trick method is to apply the attitude of gratitude. Apply the, मेरे साथ बोलिए, apply attitude of gratitude. When we have the sense of this gratitude, feeling of this gratitude, gratefulness,
that channelize, that give us the feeling of what I have said in the first part, what we have in our life and in our world are very good, very magnificent, शानदार है, खूबसूरत है, अच्छा है, बहुत ही शानदार है। और मैंने बताया आपको कि इसका एक साइंटिफिक प्रूफ भी है। मैं हवा में कहीं नहीं बातों को नहीं कह रहा हूँ आपसे। It has been researched. Now I request Hina ma'am, because it is her topic, neuroscience. It is related to neuroscience. When you apply gratitude in your mind, and I request Hina ma'am, if I am wrong, please check me, because biology or neuroscience is not my area of subject. When we apply gratitude as our life, then there is one part of mind that is known as medial frontal cortex area. इसको याद करने में मुझे बहुत समय लगा है, क्योंकि वो बड़ा अजीब सा शब्द है। medial frontal cortex area become activate. ऐसा कोई टर्म है ना मैम? So when medial frontal cortex area activate, so then it generates some very good thing in our life. Some magic happen in our life, some miracle happen in our life. Whenever we are in the condition of social interaction or human connection, it generates the feeling of happiness. जब हम कभी सामाजिक ताने बाने में रहते हैं या मनुष्य के रिश्तेदारी वाले संबंध में से दौर से गुजरते हैं, तब जब हमारे ये मेडाइबल फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया एक्टिवेट रहता है, तो हमें क्या प्रदान करता है? वो खुशी प्रदान करता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है, जिसको काटा नहीं जा सकता है। ये हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है, ये हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, और हमारे मस्तिष्क में जी समस्याओं को, तनाव को से दूर भगाता है, उनको बचाता है। It has 4 benefits. बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका मेलिका पिट्स कहती है, जब हम अपने जीवन में कृतज्ञता को अपने जीवन का एक भाग बना देते हैं, तो 4 चमत्कार होते हैं। वो हमारे जीवन की हर कमी को समृद्धि में बदल देता है, हमारे जीवन की हर कमी को समृद्धि में बदलता है, हमारे कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देता है, और हमारे दुख और कष्ट को विजडम में बदल देता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठा है जिसको कोई दुख और कष्ट नहीं हो, सबके पास कोई न कोई परेशानियां हैं। तो जब कृतज्ञता रहती है, तो वो दुख और कष्ट विजडम में बदल देता है, प्रज्ञा और विवेक में बदल देता है, तो हम सही डिसीजन लेने पाते हैं, और हमारे सपनों को, हमारे ड्रीम्स को वो एक विजन देता है, एक दृष्टि देता है, जो हमें कहाँ ले जाता है? सीधे सफलता की ओर ले जाता है। तो हमने आज 2 भागों की चर्चा की। इसके और भी पार्ट्स हैं हमारे पास, कि पहले भाग में मैंने बताया व्हाट इज ग्रैटिट्यूड। 2 पार्ट है। ग्रैटिट्यूड इज दैट व्हाट वी हैव इन आवर लाइफ एंड इन आवर वर्ल्ड, ऑल दोस थिंग्स आर, क्या है वो जो हमारे पास, जो भी दुनिया में हमारे पास जो चीजें, वो क्या है? बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, और ये बिना मांगे जो चीजें हमको मिली है खूबसूरत और अच्छा, वो हमारे जीवन को क्या बनाता है? बहुत ही सुंदर बनाता है, बहुत ही सुलभ बनाता है, बहुत ही आसान बनाता है, और बहुत ही सफल बनाता है। किसको अपनाने से? कृतज्ञता अपनाने से। और ये कृतज्ञता, ये ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है साइंटिफिक अप्रोच में, वो मैंने आपसे डिस्कस किया है। बिना मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अब इसके तीसरे भाग में हम देखेंगे कि ये जो ग्रैटिट्यूड है, जो इतना शानदार है, इतना खूबसूरत है, उसको कैसे इनकलकेट करें, हाउ कैन वी इनकलकेट दैट ग्रैटिट्यूड इन आवर डे टू डे लाइफ। आपने बहुत देर तक बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी है। थोड़ा सा मैं ब्रेक देना चाहूँगा, और मैं कहूँगा कि सर एक ग्रैटिट्यूड पर एक छोटा सा जो वीडियो है उसको चलाया जाए, इससे मुझे भी कुछ आराम मिले बोलने में। फिर मैं इसके तीसरे पार्ट में आपको एक्टिविटी कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। When I watch TV, it's just some show that you just never pretend. And when you explore, you get more imagination than you already have. And when you get more imagination,
it makes you want to go deeper in, so you can get more and see beautiful things. Like the path. If it's a path, it could lead you to a beach or something, and it could be beautiful. You think this is just another day in your life? It's not just another day. It's the one day that is given to you today. It's given to you. It's a gift. It's the only gift that you have right now, and the only appropriate response is gratefulness. If you do nothing else but to cultivate that response to the great gift that this unique day is, if you learn to respond as if it were the first day in your life and the very last day, then you will have spent this day very well. Begin by opening your eyes and be surprised that you have eyes you can open. That incredible array of colors that is constantly offered to us for pure enjoyment. Look at the sky. We so rarely look at the sky. We so rarely note how different it is from moment to moment with clouds coming and going. We just think of the weather, and even of the weather we don't think of all the many nuances of weather. We just think of good weather and bad weather. This day, right now, is unique weather. Maybe a kind that will never exactly in that form come again. The formation of clouds in the sky will never be the same that is right now. Open your eyes, look at that. Look at the faces of people who you meet. Each one has an incredible story behind their face. A story that you could never fully fathom. Not only their own story, but the story of their ancestors. They all go back so far. And in this present moment, on this day, all the people you meet, all that life from generations and from so many places all over the world, flows together and meets you here. Like a life-giving water if you only open your heart and drink. Open your heart to the incredible gifts that civilization gives to us. You flip a switch and there's electric light. You turn a faucet and there's warm water and cold water and drinkable water. It's a gift that millions and millions in the world will never experience. So these are just a few of an enormous number of gifts to which we can open your heart. And so I wish you that you will open your heart to all these blessings and let them flow through you. That everyone you will meet on this day will be blessed by you. Just by your eyes, by your smile,
your touch, just by your presence. Let the gratefulness overflow into blessing all around you. And then it will really be a good day. थैंक यू रंजन सर। तो ये जो वीडियो क्लिप हमने देखा, इसमें 2-3 बातें से कही गई है कि जो आज का ये शुभ दिन हमको मिला है, उस शुभ दिन में हमने जो एक टच, जो उपस्थिति और जो आसपास के माहौल से जो हमने को एक एहसास हुआ, उस एहसास को लेकर हमको हमेशा एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड होना है। ये 3 ही बातों पर ये फोकस था, जो हमारे साथ हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, कलीग्स का जो हमारे साथ उपस्थिति हुआ, बेटे बेटी मम्मी पापा का जो स्पर्श मिला, सुबह हम ठंडी हवा में थोड़ा सा छत पर बैठ ठंडी हवा खाए टहले, उसका जो हमको एहसास हुआ, इन सबों के लिए हमको दैट फर्स्ट था द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब आते हैं तीसरे पार्ट में। व्हाट वाज माय फर्स्ट पार्ट? व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? अगेन आई रिपीट, ग्रैटिट्यूड हैज 2 पार्ट। पहला पार्ट क्या है? सर कोई या मैम कोई बोलेंगे पहला पार्ट क्या है ग्रैटिट्यूड का? कि हमारी जिंदगी में और हमारी दुनिया में जो चीज भी है वो कैसा है? खूबसूरत है, बहुत ही हसीन है। और दूसरा भाग क्या कहता है कि ये जो खूबसूरत और हसीन है, जो हमें बिना मांगे मिला है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है, ऑक्सीजन है, जो शुभ दिन है, हमें जीवन है, हमारा स्वास्थ्य है, सो मेनी थिंग आई कैन से, वो हमें बिना मांगे मिला है। और जो हमारे जीवन को क्या कर रहा है? और अधिक सुंदर, और अधिक सुलभ, और अधिक शानदार, और अधिक खूबसूरत और हसीन बना रहा है। इसका एहसास ही क्या है हमारा? इसी एहसास को क्या कहते हैं हम लोग? और ये कैसे काम करता है? हमने एक 3 शब्द याद किया था, मेडाइवल फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन, जो हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को बैलेंस करता है। मैंने सही बोला मैम? अब जब हमने इतनी अच्छी बातें जान गए हैं हम, तो अब हमको ये जानना है कि हाउ कैन वी इनकलकेट ग्रैटिट्यूड इन आवर डे टू डे लाइफ। मैं इसमें आपका पार्टिसिपेशन चाहूँगा, इसलिए मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिए। मैं किसी को भी खड़ा करा के उस कंडीशन में आपसे कुछ आपके विचार दूंगा, तो प्लीज कोऑपरेट विद मी। मैं पहले कह दे रहा हूँ, इसकी भी शुरुआत मैं एक एक्टिविटी से कर रहा हूँ। और वो एक्टिविटी क्या है कि एक दिन, मैं थोड़ा पकड़िएगा, एक दिन एक प्रोफेसर ने क्या किया कि अपने क्लास में एक ग्लास लिया और उस ग्लास में थोड़ा पानी डाला, और समझिए कि मैं वो प्रोफेसर आज दिन की आज कोई स्टूडेंट, व्हाट इज द वेट ऑफ दिस ग्लास? कितना वेट होगा इसका बताइए, अंदाज बोलिए। 150 ml, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ml, 150 मैंने ग्राम में बोलिए, 150 ग्राम, 100 ग्राम। अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि मैम इसको आपको 1 मिनट के लिए पकड़ना है, तो आप क्या बोलिएगा? 1 मिनट के लिए पकड़ना है, तो आपके लिए कैसा रहेगा? 1 मिनट के लिए पकड़ना है, आसान रहेगा। सर मैं बोलूँ आपको उसको 1 घंटा तक ऐसे पकड़े रहना है, तो आप क्या आपका उत्तर होगा? मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? हाथ में दर्द हो जाएगा, हाथ में दर्द हो जाएगा। सर मैं आपको, आप थोड़ा हड्डी कट्टे लग रहे हैं, मैं बोलूँगा 5 घंटा सर इसको आपको पकड़ना है, तो आप क्या बोलेंगे? सर बहुत मुश्किल हो जाएगा, हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा। हमारे स्कूल के जो कमांडो सर हैं, अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा सर आपको ये दिन भर ऐसे हाथ में पकड़ना है, दिन भर, तो आपका उत्तर क्या होगा? हाथ कांपने लगेगा, हाथ हैंड्स बिकम नम और सुन्न हो जाएगा। और ये अगर कोई किसी दुबले पतले व्यक्ति को मैं दे दूँ, हमारे रंजन सर को अगर मैं दे दूँ, रंजन सर को अगर मैं खुद ही दूँ, तो हो सकता है कि उस पर पैरालिटिक अटैक किया जाए। ये साइंस कहता है, बिना वैसा कहते हैं पकड़े रहेंगे तो अगर नहीं कंट्रोल होगा तो पैरालिटिक अटैक हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज है, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उस प्रॉब्लम्स को हम यहाँ इधर
यही तो ब्रेन का असली हिस्सा है, ये तो नहीं ना है, इधर वाला है। उसको 5 मिनट से ज्यादा हमको कैरी नहीं करना है। अगर हम कैरी करते हैं तो हमसे बहुत सारी परेशानियां हमें को झेलना पड़ेगा। केवल हम समस्याओं के विषय में सोचते रहेंगे तो क्या होगा, उससे डर और घबराहट उत्पन्न होती है। तो जब भी ऐसे हमारे साथ कोई गलतियां होती है, जैसे अभी मैं हाल की बात बताऊं, अनफॉर्चुनेटली प्रिंसिपल मैम इज नॉट हियर, बिकॉज ऑफ मी एंड प्रिंसिपल मैम वी डिड वन मिस्टेक इन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन LOC of class 9 and 10. So always we are discussing. तो हम लोग उस समस्या के विषय में चर्चा ही करते रहते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जो हमारे आसपास के मित्र थे वो हमसे बार बार बोलते थे कि सर और मैम आप मत घबराइए, धीरज रखिए, हिम्मत रखिए, ताकत रखिए। तो भाई साहब, माय डियर कलीग्स, वो हिम्मत, धीरज, ताकत हम कहाँ से लाए? फ्रॉम वेयर वी हैव ब्रॉट आवर हिम्मत, धीरज, ताकत? तो बहुत सारी चीजों को रिसर्च करने के बाद, आफ्टर रिसर्चिंग सो मेनी थिंग्स, व्हाट आई हैव फाउंड दैट फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट, gratitude, self development, gratitude is one of the best method. और ये gratitude को हम अपने जीवन में जब हम अपनाते हैं, जिसका मैंने साइंटिफिक प्रूफ भी आपको बताया, तो वो हमारे वर्तमान को आसान कर देता है, मेक आवर प्रेजेंस वेरी इजी, हमारे फ्यूचर के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करता है। तो हम अपने भविष्य में होने वाले प्रोजेक्ट के लिए जो भी डिसीजन लेते हैं, उस उपजाऊ जमीन पर बहुत ही शानदार और घना फसल लेकर आता है, जो हमें सफलता देता है और ये बहुत ही कारगर होता है। इसको अपनाने के लिए 3 मेथड है। मेथड नंबर 1, 90 सेकेंड। 90 सेकेंड चाहिए हमारे जीवन का। जब भी हम डिनर लेते हैं रात में, तो मुंह में निवाला लेने के पहले हमको आज अपने दिन भर के काम के विषय में, व्हाट वी हैव गॉन थ्रू आवर डे, या थिंक ऑफ इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में, हमारे आसपास की संगठित घटनाओं में, परिवार से लेकर, वर्क से लेकर, दोस्त से लेकर, बाजार से लेकर, कुछ भी से लेकर, जो एक अच्छी बात हुई वो हमारे साथ, उसको याद करना है और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। अब आपका इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है। मान लीजिए मैं किसी शब्द का नाम लूंगा, मैं चाहूंगा कि आप पूर्ण सहयोग कीजिएगा। आपने कल का जो दिन बिताया, आप उस पूरे दिन के लिए किसी एक चीज के लिए, मैं आपको ओपन टू ऑफर दूंगा, कोई एक हमारे कलीग उठेंगे और उसके लिए आप शेयर कर सकते हैं कि मैं इस चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कोई एक हमारे पूरी कलीग सुन चाहिए तो फिर मैं नाम लेकर करूंगा, जो मुझे अच्छा लगा। कोई एक कल जो दिन भर मैंने समय बिताया, एक अच्छा चीज याद कीजिए अपने मन में और उसके लिए हम वो अच्छा चीज हमसे शेयर कीजिए और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद सर। प्लीज, थैंक यू सर। कौन करने के लिए हम चाहेंगे जोरदार ताली। जो हम लोग का यहाँ पे अपने स्कूल के ये में जो मिसा पूजा हुआ था और जो हमने क्वायर किया और सारे बलिदान स्वरूप किए, सारे अपने भावनाओं को व्यक्त किए, वो हमारे पूरे दिन का एक अच्छा समय और एक मिसा पूजा फादर एंड ग्रेस किए, हमारे स्कूल के बारे में, हमारे डायरेक्टर्स और ये और उन्नति करें और ये करें, और आपका स्पीच, आपका क्वायर, हमारा सिखाने का तरीका, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये पूरे दिन का एक बहुत अच्छा माहौल और ये पूरे दिन का हमारे लिए लाइफ में एक दिन का अच्छा हुआ हमारे लिए। इसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो यही चीज होना चाहिए कि हम अपने उस दिन के जो मुंह में निवाला में रह जाए, उसके पहले सोचना है और मन से ईश्वर को धन्यवाद देना। बिल्कुल सही नॉर्मल सर ने कहा कि कल जब हम शेयर कर रहे थे तो कोरोना के 2 ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे कि आप जान लीजिए सर, जो नए टीचर हैं कि हमारे, तो नॉर्मल सर ने बिल्कुल सही कहा है कि 2 सालों बाद हमें ये मौका मिला। अब मैं बता दूं कि हमारा विद्यालय रेड पर्सन के द्वारा संचालित एक लौटा ऐसा विद्यालय पूरे पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, दैट थ्रू आउट द कोरोना ही गेव सैलरी, और कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन के मालिक ने अपने पूरे स्टाफ को नहीं दिया है, और हमको आज यहाँ तक हम उस मुकाम से आए हैं। This is the method number 1 to apply inculcate gratitude in
our day-to-day life. The method number 2, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे दिवस आते हैं, दिन आता है जब हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलती है। तो खुशियाँ हो कि हमारे पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे, चलिए हो क्या है, हमारे बेटे बेटी ने एकेडमिकली बहुत अच्छा अचीव कर लिया, इंजीनियरिंग की आप किसी का डिग्री हासिल किया, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। We got some recognition from any renowned institution, हमको कोई अवार्ड मिला, कोई अपने फाइनेंशियल अचानक हमको कोई हेल्प मिल गया कहीं से, कहीं से कोई प्राइज मिल गया, कोई पुरस्कार मिल गया। उस दिन हम कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुश महसूस करते हैं ना, बहुत खुश महसूस करते हैं। दिस इज द राइट टाइम बेबी, मैं यूज कर रहा हूँ, ये वो समय है जब हम खुद से बातें करें, और उन बातों को एक लेटर के माध्यम से लिखे। वी शुड राइट ए लेटर टू मी, आवरसेल्फ, मुझे लिखना है। मैं वो लेटर किसको लिखूंगा? स्वयं को लिखूंगा। और उस लेटर में 2 बातें होनी चाहिए। पहला कि वो जो खुशी आपको मिली है, जो अवार्ड मिला है, पापा जो अच्छे हो गए हैं, जो हमारी बेटी ने या बेटा ने अचीव किया है, जो हमको फाइनेंशियल हेल्प मिला है, जो हमने जमीन खरीद लिया, मकान रजिस्ट्री करा लिया, जो भी किया, हमारा इंक्रीमेंट हो गया, हमको एक अवार्ड मिला, वो हमें क्यों मिला है, और उस समय हम किस एहसास को, फीलिंग मेरा क्या है। ये 2 चीजों को, ये पहला चीज हो गया। इसका दूसरा भाग हमको मेंशन करना है आपने, जब हम उस लेटर में हम किसको लिख रहा है, वो लेटर में किसको लिख रहा हूँ? स्वयं को लिख रहा हूँ। और उसमें लिखना है कि जब भी भविष्य में मेरे साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो आई एम केपेबल ऑफ टू कम बैक विद दैट चैलेंजिंग सिचुएशन। में जब उस तरह की चुनौतीपूर्ण समस्या आएगी तो मैं उससे सामना करने के लिए अपने स्वयं को मैंने तैयार कर लिया है। माय डियर कलीग्स, माय डियर फ्रेंड्स, दैट लेटर इज द की टू शो अस द पाथ। वो लेटर जो मैं खुद को लिखूंगा, मैं खुद से बात करूंगा, वो हमारे लिए एक चाबी होगी। और वो चाबी क्या करेगी? भविष्य में हमारे साथ कोई भी ऐसी समस्या आएगी, कोई भी ऐसी चुनौती स्थिति आएगी, जब हम उस लेटर को पढ़ेंगे तो कैसा महसूस करेंगे? अच्छा महसूस करेगा, हमको वो रास्ता दिखाएगा। अब एक्टिविटी नंबर 2, हमारे जितने भी कलीग्स यहाँ बैठे हुए हैं, आपके जीवन में कभी न कभी ऐसी खुशी के पल आए होंगे, तो आप हमसे शेयर कीजिए वो खुशी का पल, और बहुत ही चंद शब्दों में आप लेटर में क्या लिखेंगे हमको बताइए। मैं भी इसको कंटिन्यू करता हूँ। मैं रश्मि मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी बेटी मेडिकल क्रैक की थी, मैं वो हेल्प कर रहा हूँ, तो वो आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत पल था, खुशी का दिन था, ठीक है ना। आप उस पल को याद कीजिए और खुद को एक जो लेटर, उस खुशी के पल को, एहसास को, खुद को लेटर जो आप लिख रहे हैं उसको अपने शब्दों में बयां कीजिएगा प्लीज। फर्स्ट टाइम उसका रिजल्ट आया मेरे मोबाइल पे, तो आई वाज इनफैक्ट वेरी एस्टोनिश्ड कि अच्छा ये मेरी बेटी का नाम है, और 2-3 बार मैंने कंफर्म किया कि मेरी बेटी का ही नाम है, और कॉलेज अलॉटमेंट देखा। उसके बाद से सबसे पहले मेरे दिमाग में आया थैंक यू गॉड कि आपने इतनी बड़ी खुशी दी है मुझे और मेरे परिवार को, और मेरी बेटी की मेहनत को आपने एकदम एक अच्छा लेवल दिया है। वो दिन, वो खुशी जो महसूस हम लोगों ने की थी, वो आज तक हमारे जहन में है, वो आज तक हम फील करते हैं, और भगवान से हमेशा उसके लिए थैंक यू बोलते भी रहते हैं। इस तरह से छोटी छोटी खुशियाँ तो बहुत है हमारे जीवन में, अभी पॉसिबल नहीं है सारे को बता पाना, बट that was a very important happiness which we got at that time. और दूसरे पार्ट में आप क्या बोलेगा मैम, जो उस खुशी का एहसास था, तो आपके पास जब कोई चुनौतीपूर्ण समस्या आएगा तो आप उस समय कैसा महसूस करेंगे? हाँ, मैं सामना कर। Yes, we went through that process कि जब काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा था, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, when the college was not allotted, we were in pressure कि कहाँ होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत परेशान थे हम लोग। एंड द थर्ड राउंड, द फाइनल राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट हुआ, दैट वाज वेरी बहुत खुशी का माहौल देने वाला था, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हम लोग उस प्रोसेस से गुजर चुके थे, प्रोटेक्शन के प्रोसेस से गुजर चुके थे। उस टाइम वो आया तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उसके पहले का टाइम बहुत कठिन था। थैंक यू मैम, थैंक यू। दूसरे हिस्से में हमको जरूर लिखना है जो खुशी का एहसास हमारे साथ हो रहा है,
उस खुशी के एहसास में जो मेरे फीलिंग है, जो ताकत है, उसमें हमको लिखना है कि जब हमारे पास चुनौतीपूर्ण समस्या आएगी, कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आएगी, तो आई एम capable of challenging those situations compared with that situation. This was the method number 2. Write a letter to me. Write a letter to me. मैं स्वयं को एक पत्र लिखूंगा किस परिस्थिति में जब हमारे जीवन में ईश्वर की योजना के अनुसार कुछ खुशी के पल हमारे पास आते हैं। इसके बाद भी अगर हम if you are observing that the miracle, the magic, the Midas touch of gratitude is not totally working, there is a method number 3, and this method number 3 says that we have to write journals. daily हमको अपना डायरी लिखना है, रात में सोने के पहले डायरी लिखना है और उसमें दिन भर की बातों को सोचना है। जैसे पहले इंसिडेंट में बताया कि हमेशा को धन्यवाद देंगे, उसको स्क्रिबल करना है, क्योंकि साइकोलॉजिकली इट इज मेंशन दैट व्हेन वी स्क्रिबल और राइट डाउन सर्टेन थिंग्स, जब हम किसी चीज को केवल सोचते नहीं है, उसको लिखते हैं, तो वो हमारे अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, रजिस्टर्ड हो जाता है। तो दिन भर की जो अच्छी बातें होंगी उनके द्वारा जो हम सोचेंगे, कोई दो बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है और अपने को शाबाशी देना है। ईश्वर को धन्यवाद देना है और अपने स्वयं को शाबाशी देना है। तो अब आता है हमारा तीसरा एक्टिविटी। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अपने सर से, हमारे मैम लोग से, कि अगर आज आप जर्नल्स लिखिए या कल के दिन भर की घटना का जर्नल्स लिखेंगे, 2 पॉइंट मुझसे शेयर कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे और स्वयं को शाबाशी देंगे। तो क्या देंगे? कोई भी एक हमारे सर और मैम खड़े हो जाए और अपनी बातों को शेयर करें। संजय सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। इससे पहले तो मैं आज के सेशन के बारे में सोचूंगा कि आज का सेशन अजीबा है, इतना दूर तक हम लोग कभी सोचे, होता तो बहुत कुछ हमारे लिए, लेकिन हम लोग उसका अनुभव देखें आज हम अनुभव कर रहे हैं और इसको मैं निश्चित बोलूँ ग्रैटिट्यूड के कारण ही हम अपने जीवन को बहुत नीचे से ऊंचे तक हैं और अपने को शाबाशी दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ताली बजाएंगे सर के। तो जब हम जर्नल्स लिखना शुरू करेंगे, शुरू में जब हम धन्यवाद देंगे तो बड़ी बड़ी बातों के लिए धन्यवाद देंगे। हम अपने परिवार में अपने मम्मी पापा के स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देंगे, हम अपने बेटे बेटी के लिए अचीवमेंट के लिए धन्यवाद देंगे, हमें जो फाइनेंशियल अचीवमेंट हो रहा है, जो हमारे पास और नई चीजें करवा रही है, उन बड़ी बड़ी चीजों पर हमारा ध्यान होगा। और ये मान के चलिए माय डियर फ्रेंड्स, जब हम कुछ दिनों तक लिखने का आदत करेंगे और सोचना शुरू करेंगे, after some days you will find that the small things that are happening in our day-to-day life, which we are not thinking, which are just passing, those things, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सूरज का निकलना हमें खुशी प्रदान करेगा, ठंडी हवा का बहना हमें खुशी प्रदान करेगा, पानी का बहना हमें खुशी प्रदान करेगा, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगा तो हमें खुशी प्रदान करेगा। जब हम टीवी में या कोई नया अच्छा न्यूज़ देखेंगे, उसको पास कर देते थे, उससे हमको खुशी प्रदान होगा। तो जब हम इस लेवल में हम पहुंच जाएंगे, तब देखिएगा बहुत सी पॉजिटिव बातें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब तक हमने क्या किया है कि ग्रैटिट्यूड को अपने प्रैक्टिस के द्वारा अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है। तब हमें बहुत अच्छी नींद आएगी। आप देखिएगा बहुत इस चीज से बहुत परेशान होते हैं कि उनको एक अच्छी साउंड स्लीप नहीं आता है। जब ये आ जाएगा ग्रैटिट्यूड अपने जीवन अपना लेंगे तो हमें एक अच्छी नींद आएगी, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हम स्वयं में ऊर्जावान महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, एक्टिव महसूस करेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी किसी के द्वारा जो हम कोई हम पर सरकास्टिक कमेंट कर देता है जिसके लिए हमने वो गलती नहीं की है। हमारे वर्क पर से बहुत बार ऐसी बातें होती है, हमारे कलीग लोग कहते हैं सर मैंने ऐसी बातें नहीं की थी लेकिन हम डांट सकते हैं, हम ऐसी बात होगी। तो जब इस चीज को अपना लेंगे तो हम उस चीज को क्या करेंगे, स्विच ऑफ करना शुरू करेंगे, क्योंकि सेल्फ नेगेटिव टॉक हमारे अनकॉन्शियस माइंड से अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप निकलेगा, उसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी हैव डेवलप्ड दैट थिंग इन आवर माइंड। कभी-कभी किसी अधिकारी के द्वारा वर्क प्लेस में, घर पर, पड़ोस में हम ऐसी
कोई गलती नहीं करते हैं और जानबूझकर भी गलती नहीं करते, जो गलती ऐसी हो जाती है उसके द्वारा हमें बहुत ही खराब से सुनना पड़ता है बच्चों के बीच में, कलीग्स के बीच में, स्टाफ के बीच में। तो वो चीज़ हमें परेशान नहीं करेगी। कल की मैं घटना बता रहा हूँ आपको, आप प्रिंसिपल मैम से पूछ लीजिएगा। कल मैं प्रिंसिपल मैम के साथ गया था कचहरी, तो आशीष राज के केस को लेकर। तो सबसे पहले हमको पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जाकर अटेंडेंस लगाना पड़ता है। तो पीपी महाशय लोग के मुख्यालय के थे, तो प्रिंसिपल मैम के साथ मैं फाइल लेकर अंदर चला गया। हमारे लिए ये पीपी साहब बैठे हुए, हमारी तरफ देख कर बोले कि क्या बात है। Then I explained that sir, she is my principal and my principal we have come here. हिंदी में मैंने उनसे बताया कि इसलिए उसके बाद वो पूरी तरह से मेरे ऊपर नेगेटिव टॉक करना शुरू कर दिए। आप कौन होते आने वाले, मैं प्रिंसिपल को बुलाया गया था, आप क्या समझते हैं वहाँ जाइएगा किशोर न्यायालय में तो पसीना छूट जाएगा आपका। इस तरह की वो बातें हमसे कर रहे थे। तुरंत हमने अपने माइंड को तैयार किया कि इस व्यक्ति से मुझे दोबारा मिलना नहीं है जिंदगी में। मैं यहाँ स्कूल के काम से आया हूँ, मैं मुझसे अगर गलत बहसबाजी कर लिया तो ये मामला और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको मेरे जीवन में क्या महत्व है वो बोल दिया, वो अपना निकाला, अपने थोड़ा सा ये करना चाहता है। मैंने इसको स्विच ऑफ किया। उनके प्रिंसिपल का मेरे कारण थोड़ा सा एम्बेरस फील की, सर मुझे बहुत बुरा लगा कि आपको ऐसा सुनना पड़ा, लेकिन मैम ने मैम से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है मैम, मैंने उस चीज़ को अपने जीवन से हटा दिया। मैं रेनू मैम को बहुत बार इस चीज़ को समझाता हूँ, अगर मैं झूठ बोला हूँ तो जब इस चीज़ को हम अपने जीवन में अपना लेंगे, ग्रेटिट्यूड को अपना लेंगे, तो सेल्फ नेगेटिव टॉक जो हमारे माइंड में आता है, जिसको आया था मैनेजर वर्क को आया था जो अफ्रीका गया था, वो अपने आप क्या होगा हमारे यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब फायदे हैं। अब सर जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे उसके पहले मैं एक्टिविटी कराऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा सेशन इसी तरह एक्टिविटी बेस्ड रहे। मैं 5 पेयर बुलाऊंगा आपको, 5 ग्रुप ऑफ पेयर ऑफ हमारी कलीग्स बुलाएंगे और वो एक असाइनमेंट दूंगा। आप अपने से जो भी आपके साथ जिनसे आपका बनता है वो अच्छी तरह से वो आप यहाँ चलेंगे हॉट सीट यहाँ कुर्सी नहीं है, मैं ऐसे बोलूँगा हॉट सीट पर खड़े हो जाइए। प्रिय आपके साथ जिनका पड़ता है चलिए मैं आपने किसी अपने कलीग से बुलाइए हॉट सीट पर रहेंगे। तस्मिया आ जाइए प्लीज। एक छोटा सा एक्टिविटी है, जूनियर सेक्शन के अपने कलीग मैं सामने खोलूँ। आप लोगों को एक दूसरे के विषय में 2 पॉजिटिव चीज बोलना है। पृथ्वी आपको तस्मिया के विषय में, तस्मिया भी आपको पृथ्वी मैम के विषय में 2 पॉजिटिव चीज बोलना जो अच्छा लगता है। इसके लिए आप बोलना चाहते हैं कि मैं उनकी प्रशंसा कर सकूं, जो मैं उनके विषय में अच्छी बातें कह सकूं। तो पृथ्वी मैं आपको पहले I like about her that she is always smiling and she मतलब वो खुद को मतलब मुझसे मतलब एक जो जैसे कि एक होता है ना कि न्यू और ओल्ड का जो क्लैश होता है कभी कभी, वो हम लोग जनरेशन गैप वो नहीं फ्रेंड्स की तरह होगा। तस्मिया आप बताइए। शी इज़ वेरी सपोर्टिव, जैसे मैं न्यू कभी भी कोई भी हेल्प करती है तो ये हमेशा रेडी रहती हैं। एंड वन मोर थिंग, शी इज़ अ वेरी गुड डांस टीचर। अच्छा चलिए, ये तो हम लोग भी जानते हैं कि प्रिया मिस बहुत ही डेडिकेटेड है और बहुत स्किल्ड और वेल डांसर। थैंक यू तस्मिया मिस, थैंक यू पृथ्वी मिस। अब मैं दूसरे जोड़े को बुलाना चाहूँगा। हमारे 2 पंडित जी हैं सर, आप लोग आ जाइए। और तिवारी सर और अभय सर प्लीज़ आज आप लोग आ जाइए। आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। आइए हॉट सीट पर आइए सर, आइए सर। और बहुत दिनों से एक दूसरे के संपर्क में, आपको मुश्किल से 1-2 महीना हुआ यहाँ पर, तो 11-12 साल हो गए, 16 साल हो गया है, एक युग हो गया सर। आप संजय सर से बहुत ही अच्छे आदमी हैं, हमेशा जो है बात में सत्यवादी हैं, बोलते ही नहीं हैं, हमेशा पसंद करते हैं। वेरी गुड, आपकी प्रशंसा भी करते हैं वो उसी हाँ सर आप as far as my opinion is about Abhay Pandey sir, he is very sincere, very dedicated, very cooperative, and whenever I feel embarrassed and
just I feel very disappointed. I just have a feeling of very cooperative sense from him, and I feel proud of being partner and being a colleague of this institution. Although we have differences, maybe differences for what subject, because difficulties are differences, but those differences never come on the way to get a discharge and all these things. थैंक यू सर, थैंक यू। हम दोनों अपने बहुत ही सीरियस हमारे सहयोगी की तालियां बजाएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा शशिलता मैम और रश्मि मैम से, प्लीज़ आप लोग आ जाइए मैम हॉट सीट पर। आपके साथ चार 3 साल हुआ, तो मैं शशि मैम से रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि आप सीनियर हैं, आप रश्मि मैम के विषय में जो भी आपके मन में उनके विषय में पॉजिटिव चीज़ है, जो आप उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं, वो आप शेयर करें प्लीज। मैं आपको 3 साल पहले से जान रही हूँ, हमारे साथ जब आई, हमारे साथ बैठी, और कोई भी चीज़ जानने के लिए बहुत उत्सुक रहती हैं कि मैम ये चीज़ कैसे होगा, वो चीज़ कैसे होगा, और बोलने के बाद मिस ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, तुरंत सुनती हैं, वो चीज़ करती भी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है रश्मि मैम के बाद। और हम लोग अपना दुख सुख परिवार का हर कुछ शेयर करते हैं, खुल के हम लोग बातें करते हैं, कोई छुपा कर हम लोग के बीच में बातें एकदम ट्रांसपेरेंट है, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, मैंने वो टॉम एंड जेरी वाला प्यार। शशि मैम के बारे में 3 साल पहले इनसे मेरी दोस्ती हुई, उसके पहले कभी कुछ ऐसा था नहीं। तो स्कूल का जो प्रोटोकॉल है उसके अलावा भी हमारा जो रिलेशन है काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। हम लोग हर तरह की चीज़ें शेयर करते हैं और ये पता है कि हम लोगों तक ही रहती है, ये इनकी क्वालिटी है। और मैं कोई भी परेशानी स्कूल का शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे पहले से जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, किसी भी तरह की परेशानी मैम ऐसे तुरंत कहती, काम डाउन करवाती हूँ कि आप शांत होइए, थोड़ा सा शांत रहिए, हो जाएगा, की पेशेंस। इस तरह से ये काफ़ी अच्छे से मुझे संभालती हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव है। मतलब कोई भी परेशानी हो, अच्छा शशि मैम है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे मन में होता है कि ये तो है, तो काफ़ी अच्छी। यस, और सबसे बड़ी बात है कि टिफिन शेयरिंग तो बहुत अच्छा होता है। मैम अब एक छोटा सा क्वेश्चन, अभी आपने एक दूसरे के विषय में जो आपने दिल से बातें करी, कहने पर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, खुद में कैसा फीलिंग आ रहा है? अच्छा फीलिंग आ रहा है। यही ग्रैटिट्यूड है, यही ग्रैटिट्यूड कि थैंक यू बोलना। थैंक यू कैसा वर्ड है जब किसी को दिल से थैंक यू मैम। अब तो छोटा सा सेशन मैं करना चाहूँगा कि अभी हम मिलिए कि मेरे पास केवल 10 मिनट का समय बचा हुआ है शायद। हाँ 10 मिनट का सर, थोड़ा पॉज कर देंगे। हम सभी यहाँ पर बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और अपने धर्म से हमें बहुत ज़्यादा प्रेम है और आस्था है और श्रद्धा है। तो इस ग्रैटिट्यूड को मैंने अलग अलग धर्मों से भी, हमने उसमें से जो कोट है उसको लिया है कि अगर हम अपने धर्म पर विश्वास करते हैं, अपने में भी अपने जीसस पर विश्वास है, आपको अपने दुर्गा माता राम जी पर विश्वास है, अल्लाह पर विश्वास है, तो वो क्या कहते हैं ग्रैटिट्यूड के विषय में, उसको एक बार मैं आपके सामने आपसे शेयर करना चाहता हूँ। रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रैटिट्यूड। पहले आते हैं वो अकॉर्डिंग टू होली गीता, हमारी पवित्र गीता के अनुसार ये कहा गया है, they live in wisdom to see themselves in all and all in them. They live in wisdom, वो प्रज्ञा विवेक में रहते हैं, who sees themselves, जो स्वयं को वो दूसरे लोगों के बीच जैसे वो स्वयं को देखना चाहते हैं वैसे वो दूसरे को भी देखना चाहते हैं और वो उसका उल्टा भी उनके लिए सही है। Do your work with welfare of others always in mind. हमेशा हम जो भी काम करें हम दूसरे के भलाई के लिए हमारे मन में, हमारे दिलों में वो भावना होनी चाहिए और वैसा करें। ये कौन कह रहा है? विजय मित्र नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? पवित्र गीता कह रहा है। तो अगर पवित्र गीता, अगर हम अपने राम जी पर विश्वास करते हैं और पवित्र गीता को मानते हैं, तो वहाँ भी इस ग्रैटिट्यूड के विषय में इतनी अच्छी बातें कही गई है। इसलिए मैं इस धार्मिक परिप्रेक्ष्य को आपके सामने लाना चाहता था। अब आइए सेकेंड पार्ट में होली पुराण, दीना बाबा पढ़ी होली पुराण वाला। In Quran, worship Allah for the you have had and have believed in Him, and Allah is ever all appreciative, all knowing. Hadith में कहा गया है, it passes on the main practice to mind
Muhammad, जिनको आप हमारे मुस्लिम भाई लोग मानते हैं, peace be upon him, said as narrated by Abu Hurairah, he who does not thank people does not thank Allah. जो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को धन्यवाद नहीं देता है, तस्मीया में आपको भी याद दिलाना चाहता हूँ, वो अल्लाह मियां को धन्यवाद को शुक्रिया अदा नहीं करता है। ये कौन कह रहा है? हमारे पवित्र कुरान की एक आयत कह रही है, वहां से लिया गया है। तो जब हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में हमारे जो इष्ट देवी देवता या जो भगवान जिनको हम पूजते हैं, वो हमें ऐसा आदेश दे रहे हैं जिनकी बातों को हम आंख मूंद कर मानते हैं, तो हम क्यों नहीं कृतज्ञता को अपनाएंगे? और आते हैं एक और बात, होली बाइबल जो हम कृष्ण मूर्ति पर विश्वास करते हैं, speak every word in gratitude and do everything with a thankful heart. जो भी बातें हम मुंह से निकालेंगे, वाणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जब पहले दिन में हम प्रवामी के पास मेरा बहुत अच्छा फीलिंग है, लेकिन इनके पास जब मुंह से मेरी जो बातें निकल रही है वो कर्कश है, तो क्या हो जाएगा? वो मेरे विषय में क्या इमेज लेगा? वो मेरे दिल में कोई थर्मामीटर लगा के नहीं रखेगी जान जाएगी जब विक्टर सर हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। Speak every word in gratitude and do everything with a thankful heart. जैसे धन्यवाद की भावना को रखते हुए हमें सभी काम करने हैं। तो अब आपका मौका था, अपने हाथ में पेन उठा लीजिए, कागज है तो कागज उठा लीजिए। अब मैं आपका ग्रैटिट्यूड मेजर करूंगा, किस स्तर पर आप ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में अपनाते हैं, जो बोला जाता है। ये लास्ट हमारा सेशन का कंक्लूडिंग पार्ट आ गया था। चलिए मैं इसमें पढ़ूंगा, देखिए इसमें ग्रैटिट्यूड क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये हिस्सा है, डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, सबके लिए पॉइंट्स लिखा हुआ है जो आपको दिखा होगा। दिख रहा है सबको? पहला क्वेश्चन है, आप अपना पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि आपके पास ये चार्ट उपलब्ध नहीं पाया, मैंने कोशिश किया था कि चार्ट में दे पाऊं, अपना क्यों पॉइंट लिखिएगा। आई हैव सो मच इन द लाइफ, आई हैव सो मच इन द लाइफ टू बी थैंकफुल फॉर। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए मुझे धन्यवाद देना है। आप किस कैटेगरी में अपने को रखते हैं? सर प्लीज बोलिए नहीं, तो आपका पर्सनल है, उसको नोट कीजिए अपने कॉपी कागज में। आप लिखिए क्वेश्चन, सर नहीं प्लीज सर क्वेश्चन 1 लिखिए तो पॉइंट लिखिएगा, क्वेश्चन 1 के बगल में पॉइंट लिखना है, आप में लिख सकते अगर पेपर नहीं है तो, ठीक है ना। 1 सेकंड क्वेश्चन Sir, repeat the first question. First question एक बार repeat. मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए मुझे धन्यवाद देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, I have to let everything that I tell gratitude for, I would be a very long list. उसी से रिलेटेड है कि हमको ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता करने के लिए हमारे पास बहुत सा लंबा लिस्ट है। मम्मी है, पापा है, धन है, दौलत है, सेहत है, संपत्ति है, दोस्त है, उसके लिए। क्वेश्चन 2 हो गया? क्वेश्चन नंबर 3, When I look at the world, मैं जब दुनिया को देखता हूँ, दुनिया को देखती हूँ, I don't see much to be grateful for. तब मुझे लगता है कि मुझे अपनी कृतज्ञता और आभार देने के लिए बहुत सारी चीजें इस दुनिया में नहीं है। चलिए इसका स्टोरी कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया? क्वेश्चन नंबर 4, I am grateful to a wide variety of people. मेरे आसपास जो अलग अलग तरह के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं, नेता हैं, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, ये है, वो है, उस सब के लिए हमको क्या करना है? हम उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हैं। हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया? 2 क्वेश्चन और सर। As I get older, जब आप लोग मेरी उम्र के होंगे, बूढ़ा होते चले जाएंगे, और उसके बाद भी as I get older, I find myself more to be appreciate the people, efforts and situation that have been part of my life history.
मतलब जब मैं पूरा हो जाऊंगा तो मुझे, और जब जिन लोगों को मैंने धन्यवाद नहीं किया था अपनी जवानी में, अपने पहले के समय में, अब मेरे पास ऐसा महसूस होता है कि मुझे उनको धन्यवाद देना चाहिए। तो हर एक तस्मिया के लिए है कि आप 10th 12th जिनसे टीचर से पढ़ी है, जिन लोगों के समझ में आई, हमारे साथ बहुत लंबा लिस्ट है, तो आपको क्या ऐसा महसूस होता है? अपने स्कूल कीजिएगा सर। लास्ट क्वेश्चन, इसके पहले मैं थैंक यू बोल दूं कि आपने मेरा सेशन बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ किया है। लॉन्ग अमाउंट्स ऑफ टाइम कैन गो by before I feel grateful to something or someone. Long amounts of time can go. बहुत अधिक समय बीत गया है। By before पहले भी I feel grateful to something, कुछ चीजों के लिए धन्यवाद देना है मुझे, या कुछ लोगों के लिए धन्यवाद देना है। अपने स्कोरिंग करें आप सब, ठीक है ना? अब उसको ऐड कीजिए आप लोग प्लीज। एक मिनट सर, आप मैथ्स टीचर है, दूसरों को मौका दीजिए। आपकी तरह सबको तेज नहीं है मैथ्स में। चलिए, और मैं, आप अपना टोटल अपने पास रखिएगा, ये आपका व्यक्तिगत है। मैं अब बता रहा हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करना है अपनी कृतज्ञता, आप अपने जीवन में कितना अपनाए हैं। जिनका स्कोर जितना ज्यादा है, जितना बड़ा है, उन्होंने अपने जीवन में उतना ज्यादा कृतज्ञता को अपनाया है। ये आपका व्यक्तिगत है, इसलिए मैं किसी से इसका आंसर नहीं पूछने जा रहा हूँ, लेकिन इस स्केल से आपके मन में एक आ जाएगा, एक चित्र आ जाएगा कि हमको और अधिक कितना अपनाना है। और अंत में सबसे लास्ट में फिर से मैं थैंक यू बोलूँगा कि आपने हमारा सेशन बहुत अच्छी तरह से किया है सर। मेरे द्वारा त्रुटि हुई हो तो माफ कीजिएगा। हम चाहेंगे कि आज अपने जीवन में हम कृतज्ञता को अपनाना शुरू करें, और आप सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।